اور جو یہاں مشکل ہوا وہ آگے اور بھی سخت ہوگا۔ قبر پوچھے گی، تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو کس راستے پر چلا؟ یہ سوال زبان سے نہیں ایمان سے حل ہوتے ہیں۔ موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ موت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ وہ سب کو برابر کر دیتی ہے۔ راجا اور رنک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ایک روشن باب۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی بھیجے، لیکن کچھ نبیوں کو ایسی خاص نعمتیں عطا کیں جو انسانی عقل سے پرے تھیں۔ انہی میں سے ایک عجیب نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایک مکمل سبق ہے، چاہے وہ علم ہو، حکومت ہو، انصاف ہو یا اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال۔ پرندوں کی زبان، علم نہیں، امانت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھی نعمت عطا کی، پرندوں کی زبان سمجھنے کا علم۔ یہ علم صرف کسی کرامات یا چمتکار کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امانت تھی۔ پرندے ان کے لیے صرف جانور نہیں تھے، بلکہ اللہ کی مخلوق تھے جن کی بھی حفاظت اور حق تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ سفر پر تھے۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، اس میں انسان تھے، جن تھے اور پرندے تھے۔ چینٹی کی آواز اور نبی کا دل۔ جب یہ فوج ایک میدان سے گزر رہی تھی تو وہاں چینٹیوں کی بستی تھی۔ اچانک ایک چینٹی نے کہا، چینٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آواز بہت چھوٹی تھی، لیکن نبی کا دل بہت بڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی کی بات سن لی۔ وہ مسکرائے، لیکن یہ مسکان طاقت کی نہیں تھی، یہ شکر کی مسکان تھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سچی حکومت وہ ہے جو کمزور کی آواز بھی سن لے۔ پرندے حکم کے غلام نہیں، نظام کا حصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندے حاضر رہتے تھے۔ وہ ان کے لیے چھایا بنتے، خبریں لاتے اور سفر میں راستہ آسان کرتے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پرندوں پر ظلم کیا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے جسے اللہ نے طاقت دی ہے اس پر ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ ہدہد ایک پرندہ، لیکن ہمت سے بھرا۔ ایک بار دربار میں ہدہد پرندہ غائب تھا۔ نیم کے مطابق غیر حاضری پر سزا ہو سکتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ بنا وجہ غائب ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی، مگر اگر وہ کوئی واجب وجہ لائے تو بات سنی جائے گی۔ یہی انصاف ہے، پہلے بات سننا پھر فیصلہ کرنا۔ ہدہد آیا اور بولا کہ اس نے سبا کی رانی ملکہ بلقیس کی قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہ ایک پرندے کی گواہی تھی اور ایک نبی نے اسے سنا۔ انصاف کی سب سے بڑی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور انصاف کا واقعہ دو عورتوں کا ہے۔ دو عورتیں ایک بچے کو لے کر دربار میں آئیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا، یہ بچہ میرا ہے۔ معاملہ الجھا ہوا تھا، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ دونوں کو برابر حصہ مل جائے۔ یہ سنتے ہی ایک عورت چپ رہی۔ دوسری عورت تڑپ اٹھی، نہیں، بچہ اسے دے دیجیے، بس اسے زندہ رہنے دیجیے۔ یہی لمحہ انصاف کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، ماں وہی ہوتی ہے جو اپنے حق سے زیادہ بچے کی جان چاہتی ہے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، بچہ اسی عورت کو دیا گیا جس کا دل ماں کا تھا۔ انصاف تخت سے نہیں، دل سے نکلتا ہو۔ یہ فیصلہ تلوار سے نہیں ہوا، یہ فیصلہ تخت کی طاقت سے نہیں ہوا، یہ فیصلہ دل کی پہچان سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انصاف آج بھی مثال ہے۔ آج کے دور کے لیے پیغام جو طاقتور ہے، اگر وہ کمزور کی آواز سنے، وہی حکمران ہے۔ علم اگر تکبر پیدا کرے تو وہ علم نہیں، انصاف وہ نہیں جو قانون دکھائے، بلکہ وہ ہے جو حق تک پہنچائے۔ آخری بات، پرندوں کی زبان سمجھنا ایک نعمت تھی، لیکن دلوں کی زبان سمجھنا اس سے بھی بڑی نعمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر اللہ کسی کو اونچا کر دے تو اسے اور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آخری گھڑیاں۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی رونق دار کیوں نہ ہو، ہر روح کے لیے ایک وقت طے ہے، ایک ایسا لمحہ جب نہ تخت ساتھ دیتا ہے، نہ فوج، نہ دولت، اور نہ ہی قدرت کی دی ہوئی کوئی طاقت۔ اس لمحے کو کہتے ہیں
दुनिया से रुखसती का वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस हकीकत की सबसे बड़ी मिसाल है। वह बादशाह जिसे सब कुछ मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे नबी और बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने वह सब अता किया जो इंसानी सोच से बाहर है। जिन उनके हुक्म में थे वह उनके इशारे पर चलती थी, परिंदे उनके लिए साया बनते थे, ज़मीन के खजाने उनके कदमों में थे, लेकिन इन सब के बावजूद उनका दिल आखिरत से गाफिल नहीं था। वह जानते थे यह सब अमानत है, मकाम नहीं। आखिरी दिन की खामोशी वह दिन भी आया जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनियावी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। उस दिन न आसमान में शोर हुआ न ज़मीन कांपी, सब कुछ पहले जैसा ही था, क्योंकि मौत अक्सर खामोशी से आती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में नहीं थे, न तख्त पर बैठे थे, बल्कि अल्लाह की राह में खड़े थे। असाए के सहारे खड़े नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असाए छड़ी के सहारे खड़े थे। सामने जिन काम कर रहे थे, महल, इमारतें और अल्लाह की इबादतगाहें, वह निगरानी कर रहे थे, लेकिन दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ था। इसी हालत में मलकुल मौत आया। न कोई डर न कोई घबराहट, क्योंकि जो पूरी जिंदगी अल्लाह के साथ रहे उन्हें मौत डराती नहीं। रूह का सुकून से निकल जाना अल्लाह के हुक्म से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह का बाजा कर ली गई, लेकिन जिस्म खड़ा रहा। नबी खड़े खड़े इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह मंजर खुद एक पैगाम था। मौत आ जाए तब भी दुनिया चलती रहती है। जिन्नों का गलत गुमान जिन समझते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है। डर के मारे वे लगातार काम करते रहे, दिन रात, हफ्ते महीने। किसी को हिम्मत न हुई कि पास जाकर देखे। यह दिखाया गया कि ताकतवर के सामने कैसे कमजोर डर में जीता है। दीमक और कुदरत का फैसला आखिरकार एक मामूली सी दीमक अल्लाह का जरिया बनी। उसने असा छड़ी को खाना शुरू किया। जब छड़ी अंदर से खोखली हो गई तो अचानक टूट गई और जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। तभी सबको मालूम हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम तो कब के दुनिया से जा चुके थे। गैब का इल्म किसके पास। उस लम्हे अल्लाह ने एक अजीम हकीकत खोल दी। अगर जिन्नों को गैब का इल्म होता तो वे इस जिल्लत में न रहते, यानी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई नबी भी अपनी मर्जी से नहीं जानता। ताकत और इल्म भी अल्लाह के हुक्म के बिना बेकार है। मौत का पैगाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रुखसती बिना शोर के हुई, लेकिन उसका पैगाम क़यामत तक के लिए है। मौत बादशाह और फ़कीर में फ़र्क नहीं करती। जो खड़ा था वह भी गिर गया, जो हुक्म देता था वह भी खामोश हो गया। सबसे बड़ी इबरत जिस इंसान के पास सबसे बड़ी सल्तनत थी, सबसे ज़्यादा दौलत थी, सबसे ताकतवर मखलूक थीं, वह भी एक दीमक के जरिए दुनिया से रुखसत कर दिया गया, ताकि इंसान समझ जाए अल्लाह जब चाहता है सबसे छोटे जरिए से सबसे बड़ा फैसला सुना देता है। आज के इंसान के लिए सबक मौत के लिए उम्र नहीं देखी जाती, तैयारी वही है जो रोज हो, जो झुक कर जिया वही कामयाब। मरासली सल्तनत कब्र के बाद शुरू होती है। आखिरी दुआए अल्लाह हमें वह दिल अता फरमा जो मौत को याद रखे, और वह जिंदगी अता फरमा जो मौत के बाद काम आए। हर जिंदा दिल के नाम एक खामोश खत। मौत एक ऐसा लफ्ज जिसे जुबान बोलती है तो दिल कांप जाता है। एक ऐसी हकीकत जिससे कोई भाग नहीं सकता, कोई मोल भाव नहीं कर सकता और कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत न उम्र देखती है, न ओहदा, न दौलत, न ताकत। मौत बस आती है और बता देती है कि इंसान कितना बेबस है। मौत खौफ नहीं, हकीकत अक्सर इंसान मौत को खौफ समझता है, जबकि मौत खौफ नहीं, आईना है। आईना जो दिखा देता है कि हम क्या थे, क्या बन गए और क्या बनकर जा रहे हैं। जो इंसान मौत को याद रखता है वह जिंदगी को सही जीता है, और जो मौत को भूल जाता है वह जिंदगी में भी खो जाता है। हर सांस एक कदम कब्र की तरफ इंसान समझता है कि वह आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, मंजिलों की तरफ जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है हर सांस हमें कब्र के करीब ले जा रही है। बचपन चला गया, जवानी ढल रही है और बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। हर बीता हुआ दिन कहता मैं लौटकर नहीं आऊंगा। मौत का पैगाम
घमंड तोड़ने के लिए दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज ने गाफिल किया है वह है घमंड। दौलत का घमंड, इल्म का घमंड, हुस्न का घमंड, ताकत का घमंड। मौत का पैगाम यह है, जो मिट्टी से बना है वह मिट्टी में ही जाएगा। न तख्त जाएगा, न ताज जाएगा, न बैंक बैलेंस जाएगा, सिर्फ 3 चीजें जाएंगी। अमाल, नीयत और दिल की हालत। मौत अचानक आती है। मौत हमेशा ऐलान करके नहीं आती। अक्सर वह उस वक्त आती है जब इंसान सबसे ज्यादा जिंदगी में डूबा होता है। कोई हंस रहा होता है, कोई प्लान बना रहा होता है, कोई गुनाह में मग्न होता है, कोई तौबा टाल रहा होता है, और तभी रूह बुला ली जाती है। इसलिए मौत का पैगाम है, कल नहीं, आज सुधर जाओ। कब्र असली घर की पहली सीढ़ी। कब्र कोई आखिर नहीं, बल्कि आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ आसान होगा और जो यहाँ मुश्किल हुआ वह आगे और भी सख्त होगा। कब्र पूछेगी, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तू किस रास्ते पर चला। यह सवाल जुबान से नहीं, ईमान से हल होते हैं। मौत सबको बराबर कर देती है। मौत का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि वह सबको बराबर कर देती है। राजा और रंक, अमीर और गरीब, मशहूर और गुमनाम, सब एक ही कफन में लपेटे जाते हैं। कब्र में न कोई वीआईपी होता है, न कोई स्पेशल एंट्री। वहाँ सिर्फ यह देखा जाता है, तू क्या लेकर आया। सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ा अक्लमंद वह नहीं जो दुनिया जीत ले, बल्कि वह है जो मौत से पहले अपने आप को जीत ले, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले, जो अपने नफ्स को झुका ले, जो गुनाह से पहले रुक जाए और तौबा में देर न करे। मौत का दोस्त बन जाना। जो मौत से डरता नहीं, वह मरने के लिए नहीं, सही जीने के लिए तैयार होता है। मौत को याद करने वाला इंसान जुल्म नहीं करता, हक नहीं मारता, दिल नहीं तोड़ता और अल्लाह को नहीं भूलता, क्योंकि वह जानता है एक दिन जवाब देना है। आज का इंसान और मोहताज का इंसान मौत को दूसरों के लिए समझता है। वह जनाजे में जाता है, मिट्टी डालता है और लौटकर वही गलती दोहराता है। मौत का पैगाम यह है, आज जिसका जनाजा है कल शायद तेरा हो। सबसे खूबसूरत रुखसती, सबसे अच्छी मौत वह है जो ईमान पर आए, जो सजदे में आए, जो अल्लाह की याद में आए, और सबसे बदनसीब मौत वह है जो गफलत में आए। आखिरी पैगाम मौत कहती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारी हकीकत हूँ। जो मुझे समझ गया वह जिंदगी समझ गया, और जो मुझे भूल गया वह सब कुछ पाकर भी हार गया। आखिरी दुआ, अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जिससे तू राजी हो जाए, और ऐसी मौत अता फरमा जिस पर तेरी रहमत नाजिल हो।